اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نور پورٹی والی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور آج ہم جو ایک ہماری بہت ہی ہونہار بچی ریحان اسکول میں آئی ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ذہین، بہت سمجھدار ہیں۔ ان کا نام ہے اقصیٰ ٹیلرنگ والی۔ تو انشاءاللہ ان سے اچھی طرح سے بات چیت کی جائے گی، ہم امید رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا فرسٹ انٹرویو ہے، تو اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو سوری۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میرا نام ہے اقصیٰ ٹریننگ والی۔ واو، ماشاء اللہ زبردست۔ تو بیٹا آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیجئے تاکہ ہمارے ویورز جان سکیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں۔ میں میں پنجاب سے آئی ہوں، اور میں مجھے نا مس راحت لے کر آئی ہیں۔ وہ کہہ رہی ایسے میرے بچے نا بڑے ہو گئے ہیں، تم کیسے کر رہے ہیں، ویسے تم بھی کرو گے، چلو کچھ بن ہی جاؤ گے۔ میرا آپ سے سوال ہے بیٹا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ریحان اسکول میں؟ ابھی تو 10 دن ہوئے ہیں۔ میرا تو ریحان اسکول میں آ کے بڑا ہے۔ مجھے ریحان اسکول میں آ کے بہت اچھا لگا ہے، ریحان اسکول بہت اچھا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ زبردست۔ تو آپ کون سے شہر سے آئی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ کا کون سا شہر ہے، اور کہاں پنجاب میں کون سے ایریے میں رہتی ہیں آپ؟ ویسے ہم فیصل آباد سے آئے ہیں، اور علاقہ مجھے تو ہمیں لگتا ہے 274۔ تو یہ بتائیے آپ اس سے پہلے کسی اسکول میں پڑھتی تھی؟ میں پہلے پڑھتی تھی گورنمنٹ اسکول میں، اور کلاس میں 7 میں ہوں۔ تو یہاں جو آپ اسکول گئی ہو اس میں، اور اس اسکول میں جو پہلے آپ جہاں پڑھتی تھی اس میں اور اس میں کیا فرق محسوس ہوا آپ کو؟ مجھے تو بہت ہوا ہے، ریحان اسکول آ کے مجھے کچھ سیکھا ہے، میں نے کہا چلو کچھ بنوں گی، بہت سیکھا ہے میں نے۔ میں سیکھنے کی بات نہیں کر رہی بیٹا، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں اس اسکول میں اور اس اسکول میں جو آپ ریحان اسکول میں گئے ہو، تو اس اسکول میں اور جو پہلے اسکول میں آپ پڑھتے تھے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بہت چینجنگ ہے۔ یہاں پہ بھی کتاب و پینسل سے کام کرا جاتا ہے یا کسی اور چیز سے کرتے ہیں؟ آپ کیسے کام کرتے ہیں یہاں پر؟ لیپ ٹاپ پہ۔ تو لیپ ٹاپ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی، جی بہت سمجھ کیا آیا کیا ہے۔ کیا کیا بنا لیتے ہو؟ پوسٹر وغیرہ بناتی ہوں میں تبھی۔ تو خالی پوسٹیں بنانا سیکھی ہیں آپ نے؟ اسٹوری پوسٹ وغیرہ، کینوا کی پوسٹ آپ کیسے بناتی ہو، ذرا ہمیں بتاؤ گی؟ پہلے اس کو کہنا پوسٹ کو کھول لینا ہے، پھر اس کے بعد جو نا کہنا
तस्वीर लगानी है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, फिर जो मर्जी अपने से आप लिख सकती हो। बेटा नेट काम नहीं कर रहा है, नेट की वजह से आपकी आवाज नहीं आई। एक थोड़ा सा नेट सही हो तो आप दोबारा बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल नेट काम नहीं कर रहा और दोनों पिक्चरें गायब हुई हैं। तो थोड़ी सी देर के बाद आप दोबारा मुझे बताइएगा कि आपने क्या बोला, क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा, आपका नेट आवाज नहीं आ रही मेरे पास। चलो ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कर दिया बेटा। मैं आपको ये बता रही थी कि ना पहले कैनवा पोस्ट को खोल लेना, फिर जो कैनवा पोस्ट की ना वीडियो तस्वीर होगी ना, उसको फिर उसका कलर चेंज करेंगे, फिर जो ना जो मर्जी हम आप ना अपने से लिख सकते हैं। ये मैं आपको बता रही थी। जी सही है बिल्कुल। अच्छा, इसको हम जो फेसबुक पे लगाते हैं वो आपको करना आता है कि फेसबुक पे लगा सकेंगी ये तस्वीर को कैसे लगाती अभी हैं? मेरी फेसबुक की आईडी नहीं बनी, इस वजह से मैं अभी अपलोड नहीं कर रही हूँ। अब मेरी फेसबुक की आईडी बनेगी, फिर मैं अपलोड करा करूंगी। यस यस, ठीक है, ओके। अच्छा, तो आपने इंटरव्यू लेना देना सीखा या नहीं सीखा, अभी सीख रही हैं? अभी तो चले माशाल्लाह, मुझसे आपने शुरुआत की है, इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि वहां पर आप क्या क्या करती थी अपने घर में जब थी आप? तो 10 दिन से तो रेहान स्कूल में आ रही हैं, लेकिन इससे पहले जो आप अपने घर पे थी तो क्या क्या काम अंजाम देती थी, कौन कौन से काम करती थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सुबह को मैं स्कूल जाती थी, उसके बाद मैं आके अड्डी जाती थी, उसके बाद तो कोई झाड़ू लगा लेती, बर्तन धो लेती थी, कपड़े लगा लेती। यानी घरेलू कामों में मसरूफ रहती थी। तो यहाँ आके आपकी मसरूफियत बढ़ गई है, आप स्कूल भी जाती हैं या फिर घर पे भी आके यहाँ पे जाहिर बात है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती होंगी। तो उस जिंदगी के तजर्बे में और इसमें कितना फर्क आपको महसूस होता है? क्या आपकी सोच में कुछ फर्क आ रहा है? क्या आप समझती हैं कि इस तरह से आप जो जिंदगी गुजारेंगी तो वो बेहतर होगी, या वो पहली वाली जो जिंदगी आप गुजार रही थी वो बेहतर होगी? आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बेटा। मुझे तो इधर आके चेंजिंग हुई है। मैं इधर उधर होड़ थी, इधर आके मैं होड़ हुई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा चेंजिंग है। सुबह को स्कूल जाना होता है, 2 बजे घर आना होता है, इस वजह से। यानी मसरूफियत ज्यादा हो गई है आपकी, तो आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है यहाँ आके आपको ज्यादा अच्छा लगा, यही बात है बेटा? जी।
जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आपके कितने बहन-भाई हैं? हम 2 बहनें हैं, 1 भाई है, वो छोटा-सा है। तो आपकी उम्र कितनी है बेटा? 12 साल। तो आप माशाल्लाह क्या बनना चाहेंगी बेटा? मैं तो अभी सीख रही हूँ, मैं कहती हूँ चलो कुछ बन जाऊँगी, माँ-बाप का सहारा ही बन जाऊँगी, इस वजह से। बिल्कुल माँ-बाप का सहारा भी बनेंगी और आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ कर सकेंगी। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और कोई पता नहीं होता और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मुश्किलात भी आ सकती हैं। तो अच्छी बात है आप सीख रही हैं और लोगों को भी आपको कहना चाहिए कि और लोग भी सीखें क्योंकि ये इस वक़्त जो है एआई का दौर है और इसको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एआई के दौर को आप समझ रही हैं कि ये एआई का दौर क्या होता है? इसके बारे में कुछ बताएँगी? हाँ जी, मैं समझ रही हूँ, मैं अभी खुद करूँगी, फिर बाद में अपने फैसलाबाद में जाके स्कूल खोलूँगी, बच्चों को सिखाऊँगी। ये मैं कह आप से वो गाँव में रहने पर मजबूर हैं। ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी बेटा? मेरा मेरा ख़्याल है इनका नेट जो है वो गया हुआ है इस वज़ह से इनकी समझ में नहीं आई है मेरी बात। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं और जी बेटा, तो आपके घर वाले क्या काम करते हैं? क्या वहाँ पे हल वग़ैरह चलाते हैं, ज़मीन देखते हैं, क्या काम करते हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए। हमारी तो घड़ी है और मम्मा मेरी मंजे बनाती है और पंखे बनाती है और साइयाँ गंदे करती है। ये काम करती है मम्मा मेरी। अच्छा, तो आपके घर का गुज़ारा हो जाता है क्या? कितने पैसे आ जाते होंगे? घर का गुज़ारा आपका हो जाता है बेटा? जी, मामू लोग देते हैं और आंटियाँ लोग देती हैं। और हमारे जो से गाँव में रहते हैं, वो हम लोगों को देते हैं। अच्छा ताउन करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलिए ये भी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और उन लोगों को भी इस चीज़ का अजर दे कि वो आप लोगों का ख़्याल करते हैं। तो क्योंकि एक-दूसरे के साथ ही ज़िंदगी चलती है, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो मुझे आप एक बात और बताइए कि आपकी मम्मा ने ये काम जो पंखे बनाती हैं और चारपाई वग़ैरह बुनती हैं, तो वो आपकी मम्मा ने किसी से सीखा है या वहाँ पर सब इसी तरह से काम करते हैं? पहले पहले तो मेरी मम्मा को नहीं आते थे और एक मंजी पर मम्मा ने पहले ढाई उस पे दे के फिर बनाई थी, फिर दुनिया को बनाने लग गई मम्मा मेरी। ऐसे बनाने आई है मम्मा मेरी को। अच्छा, आपके वालिद साहब जो हैं वो कैसे फ़ौत हुए? कुछ ज़रा-सा बताना पसंद करोगी बेटा? ये दुःख की बात है लेकिन थोड़ा-सा पूछने का मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके वालिद साहब कैसे फ़ौत हो गए? मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, इस वजह से मेरे पापा की ऐसे हुआ है। रोज़ा का महीना था और जब रोज़ा खुलने लगा था ना मगरिब टाइम उधर मेरे पापा की ना रूह कब्ज़ हो गई थी।
अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला रहमत फरमाए अपनी, और आप लोगों को इस काबिल बनाए कि आप अपनी वालदा का सहारा बने, अपने बहन भाइयों का सहारा बने। अच्छी बात है बेटा, आपने अच्छा कदम उठाया, और अल्लाह ताला इन लोगों को भी जिन्होंने आपको इस काम की तरफ रागिब किया है, इनको भी इनका जो इन्होंने किया है उसका अजर अता फरमाए अल्लाह पाक। तो बेटा बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। आपका फर्स्ट इंटरव्यू था ये, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू जो है अभी थोड़ी सी देर के लिए ही कर रही हूँ। और मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप अपने बहन भाइयों के जैसे और भी बहन भाई हैं आपके, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी बहन भाई हैं आपके, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी बेटा? जी, मैं देना चाहती हूँ, जो मुझे इस काबिल में बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे, और उसके हस्बैंड की लंबी ज़िंदगी करे, और बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे। मैं तो बस यही गुज़ारिश करती हूँ। तो आप ये नहीं चाहेंगी कि और बच्चे भी ये जो आप सीख रही हैं ये भी सीखें, और वो सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करें, जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं? ये नहीं कहना चाहेंगी आप किसी से? जी, मैं चाहती हूँ, और मैं कर रही हूँ, बच्चे भी करें, और आगे तो आगे बढ़ें, और अपने कामयाबी का नाम रोशन करें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये हमारी बेटी थी अक्सा ट्रेनिंग वाली। तो व्यूअर्स आपने देखा, इन्होंने माशाल्लाह कितने ज़हानत से जवाबात दिए, और किस तरह से इन्होंने कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनका ये था इंटरव्यू, और इस फर्स्ट टाइम में भी इन्होंने अच्छी तरह से जवाब दिए, कोई घबराई नहीं, ये अच्छी बात है इनके अंदर। तो हमें इजाज़त देंगे आप, और बेटा आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, ने आपको दावत दी तो आपने उसे कबूल किया, बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा आपके इंटरव्यू देने का, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, हम किसी और मेहमान के साथ फिर जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आंटी कैसा दिया? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। 17 मिनट का हुआ, ठीक है।